गुड इवनिंग। माय नेम इज़ प्रतीक गुप्ता। और आज के यूट्यूब के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं एक रीसेंट अनाउंसमेंट जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने की है, जिसका नाम है फ्रॉड रजिस्ट्री। ओके। तो आप लोग जानते हैं कि टाइम टू टाइम हमारे देश में अगर हम देखें, इंडिया के अंदर देखें, तो फ्रॉड्स जो हैं वो अलग अलग तरह के बढ़ते जा रहे हैं। जैसे आप लोग जानते हैं, लोग कॉल करके फ्रॉड करते हैं। अपना पासवर्ड बता दीजिए, ओटीपी बता दीजिए, आपका पैन कार्ड अपडेट नहीं है, आपका आधार कार्ड अपडेट नहीं है। अलग अलग तरह के फ्रॉड आपने देखने हैं कि होते रहते हैं। ठीक है। उसके अलावा आपने देखा होगा कि कई बार ऐसा होता है कि सामने वाला आपको फ़ोन करके बोलता है कि सर आपके बैंक अकाउंट में बैलेंस कम है। ठीक है। तो अलग अलग तरह के फ्रॉड, इनफैक्ट जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे फ्रॉड करने के तरीके भी नए तरीके से बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है। तो उसी केस में मान के चले, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अलग अलग इनिशिएटिव्स स्टार्ट किए हैं और टाइम टू टाइम अलग अलग इनिशिएटिव्स वो आपको बताते भी रहते हैं और आपको सतर्क भी करते रहते हैं। बट साथ ही साथ मान के चलिए, अब जो इनिशिएटिव रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लेने वाला है वो है फ्रॉड रजिस्ट्री का। जैसे मान के चलिए कि जैसे हमारे स्कूल के अंदर, कॉलेज के अंदर हमारे रजिस्टर बनते थे जिसमें हमारे नाम, एड्रेस, हमारा फ़ोन नंबर और बाकी सारी डिटेल्स होती थी, उसी तरीके से रजिस्टर बनाया जाएगा, जिसके बारे में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अनाउंस किया है और कह रहे हैं कि उस रजिस्टर के अंदर जितने भी फ्रॉड्स वाली एक्टिविटीज़ हैं, चाहे वो मोबाइल फ़ोन नंबर है, चाहे वो वेबसाइट है, चाहे वो कोई भी ऐसे ऐसी कंपनी है जो इस तरह की फ्रॉड्स कर रहे हैं और वो आपको परेशान कर रहे हैं, तो उनकी एक रजिस्टर बनाया जाएगा। ठीक है। तो हम इसके बारे में आज डिस्कस करने वाले हैं। मेरा नाम है प्रतीक गुप्ता। ओके। पिछले 10 साल से मैं सिविल सर्विस एस्पिरेंट्स को पढ़ा रहा हूँ। 2011 आई द ईयर व्हेन आई स्टार्टेड माय करियर, एंड नाउ इट इज मोर देन 10 years. So if you really want to learn economics in a very simple way, then you can join my plus courses, which is going to be started from the first week of September. Okay, the exact date will be announced very soon. And to join my courses, you can use my code PGUPSC. Okay, that is the first thing. Now after that, as you know that Unacademy is India's largest learning platform, so you can simply join here for the purpose of learning the best from the best educators. Okay. Then why you need to choose Unacademy? As you know that we have 170 plus toppers in 2020 and 178 plus toppers in 2021, rank 3, rank 4, rank 5. That a lot of facilities you're being able to get here. So for the purpose of clarification and the other, you can simply call on the given number on the screen. Okay. Then as per your convenience, you can simply choose the educator as per your choice, which course you want to choose, which educator you want to choose. You have a complete freedom and you can choose accordingly. Okay. Then you can also find us on the Telegram channel, and you can also find us on the community channel. So links have been given in your description. Okay. Then as you know, the 20% off offer is currently going on with the help of and where you can simply prepare with the top educators. So if you go for the iconic courses, then you need to pay for 24 months around 95,685, and you will save around 20%. And if you join the plus courses, you will get the 24 months course at around 62,282 rupees. Okay, and you can use my code for the purpose of 10% discount or even more than that. It depends upon the terms and condition, PGUPSC. Okay. Then after that, physical notes, as you know, are going to be part of iconic course only. So only till 31st August you will be able to get the physical notes with the your plus and plus combos. Okay, so please hurry. And then after that, if you are facing any kind of financial background issue, or if you're having some sort of low income background, then you can simply opt for the 0% EMI, and you can call for the at the given number, and you can simply people are going to help you regarding that. Okay. So now let's come to our topic. So as you know, banking and finance is a very important topic in our prelims examination. Okay. But in this particular initiative which the Reserve Bank of India is going to initiate, there might be a chance that you will also get a question in your mains examination. Okay. Because it is something which is also being related to the social issues, because this thing, a lot of people who are basically saving their money, and when certain people are doing this kind of fraud and these people are losing all their money, then this thing, we are also having some sort of law and order issues in case of our country. Okay. पैसा चला गया, उसके बाद आप बहुत परेशान है, ऑब्वियसली बात है, पैसा जाएगा तो परेशान तो होंगे ही। तो उस केस में मान के चलिए लॉ एंड ऑर्डर इशू भी होता है। तो इसको कहीं ना कहीं अगर यूपीएससी चाहे तो इसको सोशल इश्यूज वाले टॉपिक से भी कनेक्ट करके आपसे पूछ सकता है। ठीक है। तो हम बात करते हैं फ्रॉड रजिस्ट्री की, जिसके बारे में हमें बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, बट जितनी इन्फॉर्मेशन हमारे पास है उसके हिसाब से हम इसके बारे में बात करने वाले हैं। ओके। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बोला है कि वी आर गोइंग टू मेंटेन समथिंग कॉल्ड ए फ्रॉड रजिस्ट्री, जिसके अंदर मान के चलिए जो पॉइंट्स आपकी वेबसाइट पे आपको दिख रहे हैं वो बताए गए हैं। जैसे फॉर एग्जांपल,
Reserve Bank of India is considering setting up a fraud registry with a database of fraudulent website, phone number and various modus operandi for digital fraud. Okay, तो आप कह सकते हैं अगर कोई वेबसाइट है जो बेसिकली आपको बोलती है कि हमारे लिंक को बेसिकली आप क्लिक कीजिए, आपको जॉब मिलेगी, बट इफ़ यू नो जैसे आप लोगों ने देखा हो कई लोग जैसे अनएम्प्लॉयमेंट काफ़ी ज़्यादा है, तो बहुत सारे लोग आजकल इस तरह से फ्रॉड करते हैं, आपको बेसिकली एक लिंक भेजते हैं और कहते हैं कि आप इस लिंक पे रजिस्टर कीजिए इफ़ यू वांट अ जॉब, and then after that once you will register there they will be asking you to pay certain amount of money, you know, for the sake of getting a job. अब खुद सोचिए, सामने वाला जॉब देगा तो आपको पैसे देगा या आपसे पैसे लेगा? बट कहीं ना कहीं ये लोग इस तरह से बेवकूफ़ बनाते हैं और सामने वाले से पैसा ऐंठते हैं। तो मान के चलिए जैसे ही किसी ऐसी वेबसाइट के बारे में जानकारी मिलेगी उसको उस लिस्ट में शामिल कर लिया जाएगा। देखिए कहीं ना कहीं ये जो फ्रॉड रजिस्ट्री है जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मेंटेन करने वाला है, ये कहीं ना कहीं काफी कुछ आपका क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज की तरह काम करेंगे। जैसे आप जानते हैं क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज के बारे में अगर आप बात करेंगे, हमारे इंडिया में तो सबसे पुरानी एजेंसी है जिसका नाम है सिबिल, क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो ऑफ इंडिया लिमिटेड। सो सिबिल के केस में आप लोग जानते हैं कि अगर कोई भी लोन में डिफॉल्ट करता है या फिर क्रेडिट कार्ड के अंदर डिफॉल्ट करता है तो उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन सिबिल के पास जो बैंक्स है वो सबमिट कर देते हैं, so that if the person is going to simply approach the other bank or the other financial institution for the purpose of loan or credit card, then simply with the help of this CIBIL information, you know, they will be able to simply stop that person to get other financial, you know, facilities from the other financial institution. ठीक है, वो अलग बात है कि सिबिल का नाम अब ट्रांस यूनियन सिबिल हो गया, बट दिस इज समथिंग विच इज द ओल्डेस्ट एजेंसी इन केस ऑफ आवर कंट्री विच इज हेल्पिंग पीपल और यू कैन से द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस टू स्टॉप दीज काइंड ऑफ फ्रॉड्स। और इवन मान के चलिए ये उन लोगों को भी रोकता है जो जिनका बेसिकली बैकग्राउंड तो ठीक है, दे आर नॉट फ्रॉड, बट द पॉइंट इज व्हाट दे बेसिकली हैव द हैबिट टू डिले द पेमेंट। जैसे आप लोग जानते हैं डिले इज द फर्स्ट साइन ऑफ डिफॉल्ट। मान लीजिए अगर आपसे कोई बंदा पैसे लेता है और आपसे बोलता है कि मैं आपको 2 महीने में रिटर्न कर दूंगा और वो रिटर्न नहीं करता है, ठीक है, और आपको बोलता है कि आई एम गोइंग टू पे यू मनी बैक आफ्टर 3 मंथ्स, ठीक है, तो 2 महीने की जगह 5 महीने मांग लिए। आपने कहा ठीक है, 5 महीने के बाद भी उसने पैसे नहीं दिए, उसने बोला 1 साल के बाद दूंगा, ठीक है, 1 साल के बाद भी उसने पैसे नहीं, तो उसने बोला कि भैया 2 साल के बाद दूंगा। तो देखिए उस केस में हमारे मन में जो थिंकिंग आती है वो क्या होती है कि भैया मेरा पैसा तो डूब गया। बट मान लीजिए अगर वो बंदा 2 साल के बाद आपका पैसा विद ऑल द इंटरेस्ट और पेनल्टी भी अगर पे कर देता है, दो ही इज नॉट अ फ्रॉड, बट द पॉइंट इज नेक्स्ट टाइम व्हेन ही विल आस्क मनी फ्रॉम यू, यू विल बी रिलक्टेंट टू प्रोवाइड। आप उसको पैसे देने के लिए हिचकिचाएंगे और आप कहेंगे कि देखिए भैया एक बार रिस्क ले चुका हूं, दोबारा रिस्क मैं नहीं ले सकता हूं। पॉइंट समझ रहे मेरा? सो इसीलिए दे आर बेसिकली मेंटेनिंग समथिंग कॉल्ड क्रेडिट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट दे आर बीइंग मेंटेनिंग, ठीक है। तो इनका काम है यहाँ पे कस्टमर्स जो इंडिविजुअल्स हैं और जो बेसिकली कंपनीज जो डिफॉल्ट कर चुके हैं उनको रोकना। और रजिस्ट्री का काम क्या होगा? टू स्टॉप दीज काइंड ऑफ पीपल। अब जैसे आपने देखा होगा फोन नंबर से कई लोग फोन करते हैं, अलग अलग फोन नंबर से, और उससे बोलते हैं कि सर आपका आधार कार्ड अपडेट नहीं है, आपका पेन अपडेट नहीं है, आपका अकाउंट सील कर दिया जाएगा। इस तरह की इंफॉर्मेशन आपको बताने को पूछते हैं और उसके बाद आपसे क्या कहते हैं कि सर आप बस हमें इन इंफॉर्मेशन को बता दीजिए, then we will update it and they will also ask your one time password, OTP पूछते हैं, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बार बार बोलता है कि प्लीज कृपया करके अपना OTP किसी के साथ शेयर ना करें, ठीक है। तो बेसिकली किसी भी तरह की वेबसाइट, किसी भी तरह का फोन नंबर या किसी भी तरह की कोई भी कंपनी जो इन तरह के फ्रॉड से डिजिटल फ्रॉड में इन्वॉल्व होगी, उनकी एक रजिस्टर बनाया जाएगा, ठीक है। और फिर आरबीआई क्या कहता है? द मैकेनिज्म इज एम्ड एट प्रिवेंटिंग फ्रॉडस्टर फ्रॉम यूजिंग बैंकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। यानी कहने का मतलब क्या है कि अगर फ्रॉड करना है तो किसी और तरीके से कीजिए भैया, पर बैंकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को इस्तेमाल मत कीजिए, बिकॉज इट इज समथिंग where you have the money of people who basically earn the money through very very hard work, and they're being saving in the bank only by keeping in mind by with this basically kind of what you say, the initiative or kind of a guarantee given by Reserve Bank of India that your money is safe. So RBI को जो ये faith है depositors का, वो मेंटेन रखने के लिए कहीं ना कहीं इस तरह की हम ये जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इनिशिएटिव लेके आने वाला है। देन आफ्टर दैट such a database will help these fraudsters from repeating the fraud as the website or phone number will be blacklisted। यानी कि वो जो वेबसाइट है उनको ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को इस काम के अंदर मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के साथ टाई अप करना पड़ेगा।
बिकॉज अगर वो सारी की सारी वेबसाइट्स को रोकना है और बाकी सारी चीज़ों को काम करना है तो उन अलग अलग मिनिस्ट्री का भी इसके अंदर मान के चलिए उनको एक प्रॉपर कोऑपरेशन चाहिए होगा। और देखिए आप जानते हैं कि व्हेन द गवर्नमेंट इज रियली सीरियस अबाउट समथिंग तो कोऑपरेशन मिलना कोई बहुत मुश्किल बात नहीं होती है। ठीक है, आगे की बात करें, देखिए the payment system participant will also be provided access to the registry for real time for near real time fraud monitoring। अब देखिए पेमेंट सिस्टम पार्टिसिपेंट का मतलब यहाँ पे क्या होता है अगर आपको नहीं पता है, सो इफ आई टेल यू, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो सारे के सारे एटीएम्स को लिंक करती है, देन क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है, इनकी बात हो गई। फिर अगर आप बात करें जो हमारे अलग अलग पेमेंट गेटवेज होते हैं, जैसे हमारा मास्टर कार्ड है, हमारा रुपे कार्ड है, ठीक है, देन इफ यू टॉक अबाउट then you have this American Express payment gateway, you have Amex, then you have this Visa, okay, then you have Diners Club, okay। तो ये सारे हैं जिनके साथ इस इंफॉर्मेशन को शेयर किया जा सकेगा so that the people will be not be able to repeat such kind of fraud in the upcoming time, okay। and then after that the aggregated fraud data will be published to educate customers on emerging risk। तो कहीं ना कहीं आप मान के चलिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कह रहा है कि इस डेटा की जो एक्सेस होगी वो कहीं ना कहीं वो पब्लिकली प्रोवाइड की जाएगी so that the people will be able to access that and they will be able to simply save themselves from these kind of frauds if they are going to appear in the upcoming time। समझ पा रहे मेरी बात? तो इस रजिस्ट्री के बारे में पर देखिए मान के चलिए मैं आपको ये बात क्लैरिफाई कर दूं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अभी टाइम पीरियड नहीं बताया है कि कितना टाइम लगेगा इस फ्रॉड रजिस्ट्री को मेंटेन करने में या फिर इसको बनाने में, बिकॉज यू नो दिस थिंग, you need to have a good amount of cooperation from different ministries and departments and moreover from the government of India's different obviously ministries जो डिपार्टमेंट है इनकी अलग अलग की परमिशन लेनी पड़ेगी। अब देखिए पॉइंट ये आता है कि इस तरह की रजिस्ट्री आज के टाइम में इतनी रिक्वायर्ड क्यों है, ओके। लाइक इफ आई शो यू वन पर्टिकुलर नंबर हियर कि why it is required, so about 4,18,000 complaints were received during 2021-22 out of which 97.9% cases were cleared। That's basically the good work of the Reserve Bank of India, but the point is what 21-22 के अंदर मान के 4,18,000 कंप्लेन आई है अलग अलग बैंकिंग फ्रॉड्स को लेके, जिसमें आपके फ्रॉड्स रिलेटेड है एटीएम डेबिट कार्ड से, मोबाइल एंड इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड फॉर्म द सिंगल लार्जेस्ट ब्लॉक ऑफ द कंप्लेन है 39%। सो द पॉइंट इज व्हाट, इतने सारी जो कंप्लेन्स आपकी एटीएम डेबिट कार्ड दिस क्रेडिट कार्ड मोबाइल बैंकिंग, और आजकल तो आप जानते हैं जब से ये आपके शुरू हुए हैं टैप वाले, तो टैप में तो और भी प्रॉब्लम होती है। कई लोग आपने अगर मेट्रो में नोटिस किया हो, सो ऑब्वियसली आप नोटिस कर लेंगे तो पकड़ ही लेंगे, बट वो लोग मशीन लेके घूमते रहते हैं एंड देन आफ्टर दैट दे सिंपली टैप ऑन योर वॉलेट फॉर द पर्पस ऑफ गेटिंग अराउंड 4,000-5,000 रुपीज, बिकॉज 5,000 की पेमेंट आप जानते हैं कि बिना किसी योर पिन के, आपके बिना पिन डाले आपकी वो पेमेंट हो जाती है। तो उस केस में कहीं ना कहीं ये भी तरीका इन लोगों ने अपना लिया है फ्रॉड करने का। तो मान के चलिए इतनी सारी कंप्लेंट्स जो आ रही हैं इनको रोका जा सकता है by making the people aware, and moreover what you can do, you can simply by making a register of these kind of fraudster so that people are already aware about all these things and they will be able to save themselves from these kind of frauds, okay। moreover आप देखेंगे तो while issue relating to loans and advances by bank formed second largest chunk at 28%। जो लोग अलग अलग loans and advances के फ्रॉड होते हैं, जैसे आप लोग जानते हैं कि लोन वापस नहीं किया, क्रेडिट कार्ड का बिल नहीं दिया है, उन सब के फ्रॉड की बात करें तो वो 28% के आसपास है। तो पॉइंट क्या है, इतने बड़े, और देखिए ये वो कंप्लेंट्स है जो आपकी लॉन्च हुई हैं, जबकि आप जानते हैं इनसे कहीं ज्यादा कंप्लेंट्स आपकी होंगी, ओके, बिकॉज दिस थिंग लॉट ऑफ पीपल आर बीइंग लाइक कि चलो यार अब कौन परेशान हो, कौन जा जाके बेसिकली उस चीज के लिए परेशान होगा और कहाँ कंप्लेन फाइल करें, बिकॉज पीपल आर नॉट इवन अवेयर अबाउट इट, okay। So point क्या है, this is a good initiative on the part of Reserve Bank of India to simply stop these kind of frauds if these are going to appear in the upcoming time, okay। बाकी आप जानते हैं टाइम टू टाइम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अलग अलग इनिशिएटिव लेता रहता है। जैसे आप देखते हैं कि अगर आपकी कोई कंप्लेन हो, यू कैन सिंपली फाइल ए कंप्लेन ऑन द रिजर्व बैंक ऑफ इंडियाज ऑम्बड्समैन, देन यू हैव दिस समथिंग कॉल्ड मोबाइल एडिट नोट आइडेंटिफायर फॉर द पर्पस ऑफ फाइंडिंग आउट द फेक नोट्स एंड द अदर। और फिर बाकी आप जानते हैं आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए, अलग अलग मूवीज में अलग अलग सीरियल्स में आप लोग जानते हैं अलग अलग एड आती रहती है, ठीक है। सो बेसिकली मान के चलिए अच्छा इनिशिएटिव, और देखते हैं कितनी ही जल्दी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसको इंप्लीमेंट कर पाएगा, विल गेट टू नो, ठीक है। सो आज के वीडियो में मुझे केवल आपको इतना बताना था, बाकी हम लोग जल्दी ही मिलेंगे अपने अगले वीडियो के साथ। बट बिफोर एंडिंग द वीडियो, एज यू नो दैट वी हैव CSC Assure, and if you purchase 2-year subscription you will be able to get 1 year of free subscription, and you can use my code PGUPSC, okay, and you can simply contact on the given phone number here,
Okay, so thank you very much, and I really hope to see you all in our plus courses very soon. Please subscribe to our channel. Take care. Thank you, and bye bye.